جی میرا آخری سوال ہے آپ چاروں سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی ایک بار ہے بہاری بار، وہاں پر بھی الیکشن شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو الیکشن کی کمپین ہے وہ شروع ہوتی ہے نومبر میں، جا کے گروپس کے اجلاس ہوتے ہیں، دسمبر میں جا کے گارڈ بٹنا شروع ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ ایکسپینس بھی کم آتا ہے، ان کے لیے مشکلات بھی نہیں ہوتی، اور اس میں ایک یہ فیکٹر بھی میرے سوال میں شامل ہے کہ باہر میں جو ہے وہ پریشر گروپس جو باہر بیٹھے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں چاروں بہتر طریقے سے کہ وہ انویسٹر بن کے شامل ہوتے ہیں، کھانے کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کے، اور بعد میں وہ پھر باہر کا جو صدر روم ہے اسے پھر وہ استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو ٹائم پیریڈ کے حوالے سے پنجاب بار کی واضح جو احکامات ہیں وہ جاری ہیں، لیکن یہاں ہمارے 2 سال ایک سال پوری کمپین گھر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ظاہر ایکسپینس بڑھتے ہیں، وکیلوں کے مسائل وہ اپنے بتاتے ہیں، تو آپ بامر مجبوری، کینڈیڈیٹ تو معصوم ہوتا ہے عن الخطا، تو آپ کو تو پورے کرنا پڑتے ہیں۔ یہ اس آخری سوال کا جواب آپ دیجئے کہ جو پریشر گروپ ہیں انہیں کس طرح سے وہ لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے بہاڑی بار کی ہمارے پاس مثال موجود ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ وہ کر سکتے؟ جی چور صاحب۔ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آج سے اگر ہم 20 سال پہلے چلے جائیں، جب میں انٹر ہوا ادھر 2003 میں، تو تب یہی ہوتا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں یہاں پہ بھی کمپین کا آغاز ہوتا تھا اور گروپس کینڈیڈیٹس لاتے تھے، لیکن بدقسمتی کہہ لو یا اسے گروپ کی ڈومینیشنز کہہ لو کہ گروپوں نے اپنے کینڈیڈیٹ جو پریزیڈنٹ سیکرٹری بنتے رہے انہیں پپٹ کے طور پہ یوز کرتے، ان سے بہت معاملات میں فائدے اور منفعت حاصل کرتے رہے، تو اور بھی لوگوں نے آنا شروع ہو گیا، انڈیویجول بھی کمپین شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا ہیلدی کنٹیسٹ ہے کہ اس وقت ہم 5 کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا اس میں یہ بھی ویو ہے کہ 2 ہونے چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بے شک 10 ہوں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ تو بالکل ڈیموکریٹک بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں جانا ہوتا ہے، گھروں کی کمپین۔ میرے دادا سینئر ایڈوکیٹ تھے، وہ بتاتے تھے بیٹا کہ جب پہلے کوئی وکیل صاحب ہمارے پاس گھر ووٹ مانگنے اگر آتے تھے تو ہم کہہ دیتے تھے کہ پہلے آپ کو ووٹ دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ گھر صرف ووٹ مانگ کے لیے آئے ہیں تو اب آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اب ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ اب اگر ہم ایک کینڈیڈیٹ کسی کے گھر نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں وہ تو 2 دفعہ آئے ہمارے پاس اور آپ 1 دفعہ بھی، تو ظاہر فرمائشیں بھی بڑھتی ہیں، ایکسپینس بھی بڑھتے ہیں، وہ پھر جانا پڑتا ہے۔ آپ کو جو روایات چل رہی ہوں گی وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، آپ کو اسی کے تحت چلنا پڑے گا۔ آپ نے گھروں کی کمپین، اب 6000 وکلا ہیں، اب 6000 وکلا کی اگر گھروں کی کمپین کریں، یہ میرے ساتھ چاروں کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں، تو اگر یہ ڈیلی گھروں کی کمپین کریں، 10 سے 15 گھر اور 20 نہیں ہو سکتے، 10 گھر سفیشینٹ ہے۔ آپ وہ اوسط بنائیں تو 300 بنتے ہیں مہینے میں، وہ بھی اگر ریگولر جائیں۔ کبھی کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، فیملی میٹرز بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، آپ نے کہیں آنا بھی ہے، جانا ہے، بچوں کے معاملات ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، لیکن ریگولر بھی اگر بنائیں تو 300 گھر بنتے ہیں۔ 300 نہیں، آپ جتنی ایفرٹ کر لیں 400 500 سے اوپر کراس نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ نے 3000 جو گھر جانا ہے اور آپ نومبر میں شروع ہوں گے، تو مجھے بتائیں کیسے میٹ اپ کریں۔ اور اچھا یہ بتائیں، چلیں اس معاملے پہ تو آپ کا واضح جو پریشر گروپ ہے اس کے متعلق، جو وہاڑی ہے ان کی تو اسٹرینتھ ہی 400 500، وہ تو نومبر میں میٹ اپ کر سکتے ہیں اگر گھروں میں بھی جائیں۔ مطلب اس معاملے پہ آپ کا سیدھا آپ نے ہتھیار ڈال دی ہیں۔ آپ یہ بتائیں پریشر گروپس کے حوالے سے آپ جواب دبا گئے ہیں، یہ بتائیں بھائی پریشر گروپ انویسٹر جو باہر کے انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ، اب پہلے دن سے کوئی انویسٹر نہیں ہوتا کہ نہ کسی کے ساتھ ہوتا، جب گھوڑا جیتتا نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب آخری دموں پہ ہوتے ہیں، جب تک کینڈیڈیٹ اپنے کئی لاکھ لگا چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جیت رہا ہے، پھر وہ انویسٹر بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں وہ لو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی دعوتیں رکھ دی، کچھ اور ایسے کام کر دیے، آخری کھانا کر دیا، ہاں جی پھر وہ آخری کھانا کر دیا اگر اسے جیت نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ آگے یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ انہیں پریشر گروپ جیسے آپ نے کہا، پھر وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے کام ہو، لیکن بھائی یہ چاروں سمجھدار کینڈیڈیٹ ہے، یہ اپنے خرچے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، کسی کے ساتھ کوئی پریشر گروپ ابھی ہے بھی نہیں، اور اینڈ میں جا کے وہ دیکھیں گے اگر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مثال آپ کو آپ جیتتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پریشر گروپ آ جاتا ہے ملتان اپنی مرضی سے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اپنی مرضی سے کروڑ لگوا دے، کام میرٹ پہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے پھر
वकीलों वाली बात किया, फिर प्रेशर ग्रुप साहिबान जो प्रेशर सुन ग्रुप रहे को हैं नहीं वो भी माना सुन जाए। लें। यार वो सुन ले अच्छी तरह। हमने तो किसी को खत नहीं लिखा हमारी इमदाद की जाए, हम तो अपने तौर पे लगे खड़े हैं। ठीक। अगर कोई आएगा अपने मकसद के तहत आएगा तो फिर वो आज जो कहते हैं भोलपन में जो साथ आ जाता है उसे गिना जाता है। हाँ। जब एंड में कोई साथ आता है कौन मानता है? ठीक, ये बात। जी औजला साहब आप बताएं प्रेशर ग्रुप्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट। प्रेशर ग्रुप के हवाले से मैं आज जंगला साहब अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि ये आपकी बात हकीकत पे मबनी है। जहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में, हाई कोर्ट में हमसे पहले बहुत सारे लोग प्रेशर ग्रुप या इन्वेस्टरों ने अपने कैंडिडेट भी दिए हैं और वो जीते भी हैं, हारे भी हैं, होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 3-4 जितने बैठे हैं, हमारे पास ऐसा कोई आइटम नहीं है ठीक। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। हमने अपने घर से लगाना है जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, और मिडिल क्लास हैं। सेकेंडली मैं लास्ट टाइम जो चेयरमैन बोर्ड थे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने लास्ट टाइम जितने खाने थे, दावतें थी, उन पे उन्होंने पाबंदी लगाई और उस पर अमल दरामद करके दिखाया। ठीक, मैं अब चेयरमैन जो मलिक फयाज उल हक साहब है, आपके हवाले से उनसे गुजारिश करूँगा कि लास्ट ईयर वाली रवायत को बरकरार रखते हुए इस जो है ये झूठी सिस्टम इसको ख़त्म करना चाहिए। चाहे सीट पे कोई टी पार्टी रख ले, चाहे समोसा, ये मुनासिब है। जी, जी। बाकी इतने बड़े बड़े खाने करने, जब ये खाने करेंगे तो फिर प्रेशर ग्रुप आएगा, इन्वेस्टर आएंगे, बहुत सारे मामले डिस्टर्ब होंगे और फिर बाद में बाहर का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो भी इस्तेमाल होगा, जिसका खाते हैं फिर उसका खाते हैं। ये सूरत हाल है। जी अफजल भाई आप इस सूरत हाल में क्या जवाब दें? स्ट्रांस एक है, स्ट्रांस एक ही है हमारा। इस वक्त जो हम बैठे हैं देखें नसीब किसका है, स्ट्रांस एक है। पंजाब बार के रूल्स के मुताबिक घरों की कंपेन पे सख्त तरीन पाबंदी है, ठीक है। ये एक गलत रवायत जो है उसको आम किया गया, सिर्फ उन लोगों की ने किया कि जिनका ओढ़ना बिछोड़ना ये सियासत है कि इस सर्विस को इतना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा बना दिया जाए कि मेरे जैसा या एक आम वकील आप जैसा डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का कोई इलेक्शन कंटेस्ट सोचे ही ना। आप कहें, आपका आइंदा आने वाला वक्त आपका है, आप किसी सीनियर से कहिएगा, 5 सीनियर से पूछिएगा कि सर मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ, 3 आपके पाँव से ज़मीन निकाल देंगे, आपको दिन में अंधेरा करके दिखा देंगे। ओ भाई कहाँ से लाएगा पैसे? कंपेन कर लेगा, पैसे कहाँ से लाएगा? ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि उनकी डोमेन को कोई डिस्टर्ब ना करे। 2019 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैं बरमला कहता हूँ, मैंने किसी को कोई खाना नहीं खिलाया था। क्यों? मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से खाना नहीं खाया, किसी कैंडिडेट से। ठीक, मैं अगर कैंडिडेट से खाने खाऊंगा या मतलब इस तरह करूंगा तो मुझे भी खिलाना पड़ेगा। आज भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। घरों की कंपेन पे ऐसा है, उस पर कि 2 है, ये इसमें कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता, इसमें बार एसोसिएशन को अपना हिस्सा डालना होगा। मैं चंद बारें नाम नहीं लेता, आप वहाँ किसी की कुंडी खड़का दें, वोट का बताएं, वो सुबह इलेक्शन बोर्ड में शिकायत करता है कि ये मेरे घर में आए थे कंपेन करने, उसका लाइसेंस मनसूख है। मैं तवज्जो से कहता हूँ, मैंने शुरू में कंपेन करनी शुरू की नहीं की डोर टू डोर, तो मुझे सब कहते हैं तूने लड़ लिया इलेक्शन भाई, तू तो घर से नहीं उठता। घर डोर टू डोर गए हूँ, खुदा की कसम लोग पर्दे रखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने पर्दे रखे हुए हैं। 2 चीज़ों ने, मैं 2019 में भी कंपेन की थी, अब भी कर रहा हूँ डोर टू डोर, जितनी हिम्मत है कर रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा वकला अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसकी 2 वजूहात है। एक सख्त तरीन मौसम जो इस साल गुजरा है, और दूसरा मुजम्मिल भाई महंगाई ने हर एक को चिड़चिड़ा कर दिया है। पहले 100 रुपये में 25 रुपये की 20 रुपये की एक बोतल आती थी, 5 दोस्त जाते थे ना कंपेन में, वो 100-125 में हमें 2 पेप्सी पिला के तो फारिग कर देता। अब 500 में 5 नहीं आती, बिल्कुल है, 4 आती हैं। ये इंतहाई फजूल सर्विस है। हम कर चुके और हमने कर लेनी है। लेकिन आज मैसेज ज़रूर देंगे आने वाले लोगों को। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम कर चुके, हम भुगत चुके, हमने और 2 महीने भुगत लेने हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैसेज देना चाहूँगा आने वाले लोगों को, इलेक्शन कमीशन को और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान को, कि ये जो डोर टू डोर कंपेन है ना,
इस अफरियत से आने वाले जो भी कैंडिडेट आए उनको बचाया जाए। और रही प्रेशर ग्रुप की बात, तो भाई हम जितने बैठे हैं ना चारों, हम मीडियाकर हैं, ठीक, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ओजला साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और मैं अप्रिशिएट करूंगा डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के इलेक्शन बोर्ड को कि उन्होंने खानों पे बड़ी तकरीबात पे पाबंदी, और उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं उनके रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस पाबंदी को, इस रवायत को बरकरार रखें, ताकि मेरे जैसा, इन जैसा आम वकील और आप जैसा आम वकील डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोच सकें। ठीक, थैंक यू। मैडम बुशरा नकवी साहिबा से जानते हैं। जी, ये सच बात है कि घरों की कैंपेन बहुत टफ है। आप तो खातून भी हैं, आपके हवाले से तो फीमेल मुझे ये कहा गया कि मैडम घरों तक नहीं पहुंच सकती और ये कैंपेन नहीं कर सकती। तो बात तो ये सच है, बात तो सच है, लेकिन मैं ज़ाहिर है एक रवायत है और रिवाज बन चुका है, तो मुझे भी इख्तियार करना है। मैं भी कैंपेन कर रही हूँ, घरों में जा रही हूँ। यकीनन इस तवज्जो से, आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पे पाबंदी अगर लगी है तो उस पर सख्ती से अमल दरामद भी होना चाहिए, क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सी गड़बड़ होती है। इलेक्शन कमीशन का पिछले साल बड़ा अच्छा किरदार रहा और यकीनन बहुत सारे वकला, अगर हम 5 तादाद में नज़र आ रहे हैं तो शायद यही रीज़न होगी, क्योंकि हम ज़ाहिर है अपनी मेहनत से पैसा बनाया है और इसी बार से ही कमा के, क्योंकि हम लोग एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, या हमारे पीछे कोई माफियाज नहीं है। और मैं समझती हूँ ये जो एक माफियाज का एक चक्कर आ चुका है ना, वो ख़त्म होने का सिलसिला जो है हमारे से ही शुरू होगा और किसी को एक कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। अगर आज ये अहद करें जो भी इनमें से प्रेसिडेंट या मैं शायद आऊँ, तो मैं यकीनन ये कोशिश करूँगी कि अल्लाह ताला आगे जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर जाएं और इलेक्शन को जो है आसान बना जाएं, ताकि इतना जो पैसा लगता है उसमें वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माफियाज उनके पीछे आ जाते हैं या फिर वो खुद खर्च कर सकते हैं। उनमें से जो डिज़र्विंग हैं, जो मेरिट पे हैं, जो इलेक्शन लड़ना जानते हैं और अच्छे लोग आने चाहिए। नई जनरेशन माशाल्लाह, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे लम्ब से माशाल्लाह बहुत अच्छे इदारों से पढ़े हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए होपफुली अच्छे रास्ते होने चाहिए ताकि वो भी आगे आके ये कमांड कर सकें और बाहर के जो है वो अच्छे तरीके से इधर अपनी सर्विसेज दे सकें। उसके लिए मैं ये कहूँगी यहाँ पर फिर एक और बात कि हम प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, हम सारे यहाँ बैठते हैं, हमें पता है हमारी क्या मुश्किलात हैं, हमें क्या मसाइल दरपेश हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं, यहाँ पे बैठे हैं, गर्मी सर्दी सब हमने ये हालात निपटाए होते हैं, हमें पता होता है कौन कैसा है, सब एक दूसरे को जानते होते हैं। तो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वकला के लिए आसानियाँ पैदा करें। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने इस रिवायत को कायम किया है कि हमने तमाम कैंडिडेट्स को साथ बिठाया, और मैं इस बात की भी लास्ट में तरदीद करूँगा कि जब मलिक जावेद डोगर साहब से भी हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने इस बात पे एग्री किया था, उसके बाद ही हमने ये अनाउंसमेंट में उनका भी नाम शामिल किया, मगर अफसोस के साथ वो तशरीफ़ नहीं लाए। और लास्ट में मैं अब यही कहूँगा, इन चारों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने डिजिटल वकला इत्तेहाद को टाइम दिया और आपके जो आपने सवालात भेजे उनके इन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक जवाब दिए। आखिर में मैं बस एक शेर ही पढ़ूँगा कि आखिर में अब हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, आखिर में अब हवाएं ही फैसला करेंगी रोशनी का, जिस दिए में जहाँ होगी वो आखिर रह जाएगा। लास्ट में अब आप वकला ने फैसला करना है, मेरा काम था आप तक पहुँचाना इन तमाम लोगों का जो मंशूर था। मैंने हर हवाले से कोशिश की, हमारे चैनल ने, हमारी टीम ने, कि हम इनसे वो मामलात जो कि रोज़मर्रा में तमाम वकला को दरपेश आते हैं वो पूछें। इन्होंने अपने बिसात और अपने मंशूर के मुताबिक जवाबात दिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपने इन तमाम का मंशूर देख लिया है, आप अपने मुताबिक फ़ैसला करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए कैंडिडेटों के साथ। अब ये सिलसिला जारी रहेगा, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो। अपने मेज़बान मुज़म्मिल अब्बास और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।